So, welcome to the class. Chapter number 2, The Lost Spring, episode number 2, Haris Rawal, Rajkot. There is no school in my neighborhood. When they build one, I will go. If I start a school, will you come? I ask, half joking. Yes, he says, smiling broadly. A few days later, I see him running up to me. Is your school ready? It takes longer to build a school, I say, embarrassed at having made a promise that was not meant, but promise like mine abound in every corner of his black world. After months of knowing him, I asked him his name. Sahib-e-Alam. His name is Sahib-e-Alam. He announces. He does not know what it means. If he knew its meaning, Lord of the universe, he would have a hard time believing it, unaware of what his name presents. He roams the stills with his friends, an army of barefoot boys who appears like the morning birds and disappear at noon. Over the months, I have come to recognize each of them. तो जब ये पूछते हैं, अनिश जुंग हमारे राइटर है, उनको पूछते हैं कि तो आप स्कूल जाते हो तो कि हमारे कोई अगल बगल के विस्तार में कहीं पर भी नहीं स्कूल नहीं है, यदि होगी तो मैं जरूर जाऊंगा. राइटर भी उनको पूछते हैं कि मैं स्कूल बनाऊं तो आप आएंगे, तो वो कहते हैं जरूर. और वो एक दिन अचानक ही आकर पूछते हैं क्या आपकी स्कूल शुरू हो गई. तो ये उनका उत्साह है, उनका जो पॉजिटिव अप्रोच है वो दर्शाता है. और फिर राइटर उनको पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है. वो कहते हैं कि साहिब-ए-आलम मेरा नाम है. राइटर तुरंत ही सोचने लगते हैं कि इनको पता नहीं है कि इनके नाम का मीनिंग क्या है. साहिब-ए-आलम माने गॉड ऑफ यूनिवर्स, वो पूरे इस विश्व का मालिक है ऐसा. और वो काम क्या कर रहा है? ही इज ओनली ए रेड पिकर. तो इतनी गरीबी में है, उनका नाम है साहिब-ए-आलम. तो ये राइटर भी यहां थोड़ी देर सोचते हैं. वाई आरंट यू वेयरिंग चप्पल्स? आई आस्क वन. क्योंकि वो सभी बैर फुटेड थे, तो वो उनके पुत्ते का आप चप्पल क्यों नहीं फेरते? माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द सेल्फ, ही आंसर सिंपली. तो गरीब लोग हैं, अच्छे कपड़े, अच्छे चप्पल, जूते या उनके पास है तो वो संभल कर रख देते अलमारी के अंदर या तो सेल्फ के अंदर. जब कोई ऐसा अच्छा दिन आता है, बड़ा दिन आता है, तब वो पहनते हैं. तो ये इसी तरह रिप्लाई करते हैं कि मेरी मदर है वो सेल्फ के अंदर रख दिए अलमारी के अंदर, वो मुझे निकाल कर नहीं देती. इवन इफ शी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ. एड्स अनदर, हु इज वेयरिंग शूज that do not match. When I comment on it, he shuffles his feet and says nothing. I want shoes, says a third boy who has never owned a pair all his life. Traveling across the country, I have seen children walking barefoot. In cities, on a village road, it is not lack of money, but a tradition to stay barefoot is one explanation. I wonder. तो राइटर ने भी बहुत जगह देखी है, हमने भी हमारे जीवन के अंदर ऐसी बहुत सी जगह है कि जहां पर जो लोग हैं वो पैसे की वजह से सिर्फ नहीं मगर ऐसे ही बेयरफुट रहने को पसंद करते हैं. उनकी ट्रेडिशन बन जाती है, उनकी परंपरा बन जाती है और वो उसी तरह से रहते हैं. If this is only an excuse to explain away a perpetual state of poverty, तो sometimes कभी कभी जब पढ़े लिखे लोग रहते हैं वो रेशनलिस्ट बन जाते हैं और तर्कबद्ध आंसर देकर वो बात को
वो डाइवर्ट कर देते हैं। मगर ये तो अनपढ़ बच्चे जो अपने दिल के अंदर जो बात आती है उनको सहजता से ही वो कह देते हैं। I remember a story a man from Udupi once told me. As a young boy, he would go to school past an old temple where his father was a priest. He would stop briefly at the temple and pray for a pair of shoes. 30 years later, I visited his town and the temple, which was now drowned in an air of desolation. In the backyard where lived the new priest, there were red and white plastic chairs. A young boy dressed in a grey uniform, wearing socks and shoes, arrived panting and threw his school bag on a folding bag. Looking at the boy, I remembered the prayer another boy had made to the goddess when he had finally got a pair of shoes. Let me never lose them. The goddess had granted his prayer. Young boys like the son of the priest now wear shoes. But many others like the rag pickers in my neighborhood remain shoeless. तो ऐसा जीवन में होता है कि हम जब सच्चे दिल से जब प्रेयर करते हैं तो वो प्रेयर सुनी जाती है और उसी सुनी जाती हुई प्रेयर को ईश्वर इसके मुताबिक हमारी जो डिमांड रहती है उनको फुलफिल कर देते हैं। मगर ऐसा भी होता है कि हमारे जो ड्रीम्स और एक्सपेक्टेशंस रहते हैं इनको हम बार बार यदि हम इसको रिमेम्बर करते हैं, इनको हमारे बैक ऑफ द माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में इनको चलाते रहते हैं, फिर भी कभी ऐसा माहौल नहीं बनता है। ऐसा भी जीवन में देखने को मिलता है। माई एक्वेंटेंस विद द बेयरफुट रेग पिकर्स लीड्स मी टू सीमापुरी, अ प्लेस ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली, 8 miles away from it. मेटाफोरिकली तो ये बात राइटर यहां पर बहुत अच्छी तरह से लिखने का प्रयास कर रहे हैं कि सीमापुरी जो विस्तार है जहां पर सबसे ज्यादा रेग पिकर्स और ऐसे झोपड़पट्टी वाले लोग रहते हैं, तो वहां जाते हैं। वो दिल्ली से सबसे नजदीक है, फिर भी दिल्ली इनके लिए बहुत दूर है। बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पर वो डिफरेंशिएट दोनों स्टेट है, जो रिचनेस का और पॉवर्टी का, इनका समझाने का यहाँ पर प्रयास किया है हमारे राइटर ने। वो कह रहे हैं कि दिल्ली का ही एक हिस्सा है सीमापुरी, फिर भी वो दिल्ली नहीं है। दिल्ली जितनी समृद्धि उनको वहां तक मिली नहीं है, वो बहुत ही दूर है दिल्ली उनके लिए। सीमापुरी वो ओके 8 miles away from it. Those who lives here are squatters who came from Bangladesh back in 1971. Sahib's family is among them. Simapuri was then a wilderness. ये 1971 का जो बांग्लादेश का जो डिपार्ट हुआ, वो वॉर हुआ और इसके बाद यहाँ पर चले आए, वही लोग ये सब है और वो यहाँ पर रह रहे हैं। It still is, but it is no longer empty. Its structure of mud with roof of tin and tarpaulin, devoid of sewer, drainage or running water, life 10,000 rat pickers. तो इसी जगह पर लगभग 10,000 से भी ज्यादा लोग वहां पर रह रहे हैं। They have lived here for more than 30 years without an identity, without permits, but with ration cards that get their names on voters list and enable them to buy grain. तो उनको राशन दिया जाता है, उनका जो नाम है राशन कार्ड का, उनके आधार से उनको वोटर्स आईडी भी मिल गया है और वो ग्रेन भी, अनाज भी खाने पीने के लिए दिया जाता है। ऐसा भारत सरकार ने उनके लिए थोड़ा प्रबंध किया है। फूड इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी। तो यहां पर
जो पहचान मिलनी चाहिए वो तो अभी इनको मिली नहीं है, मगर पहचान से भी ज्यादा फूड का महत्व ज्यादा है जीवन के अंदर, तो इनको भी पहचान मिलती है. इफ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिलीज एंड गो टू बेड विदाउट एन aching stomach, we would rather live here than in the fields that gave us no grain. Say a group of women in tattered saris when I asked them why they left their beautiful land of green field and rivers. Wherever they find food, they pitch their tents that become transit homes. Children grow up in them, becoming partners in survival. And survival in Simhapuri means rag picking. तो पूरा सीमापुरी माहौल है, विस्तार है, जहां पर जो लोग रहते हैं इनका व्यवसाय क्या रहता है, अर्थोपार्जन इनका सिर्फ रैग पिकिंग ही है. Through the years, it has acquired the proportion of a fine art. Garbage to them is gold. It is their daily bread, a roof over their heads, even if it is a leaking roof. But for a child, it is even more. तो इनके जीवन के अंदर इनके पास जो रहने के लिए जगह है वो क्या है, सिर्फ झोपड़पट्टी है. जो बारिश का पानी है वो भी उनके सिर के ऊपर, घर के अंदर सभी जगह गिरता है, मगर फिर भी वो संतुष्ट है कि हिंदुस्तान के अंदर, वैसे तो वो बांग्लादेशी है, मगर हिंदुस्तान के अंदर भी उनको रहने के लिए जगह मिल गई है. थोड़ा सा ब्रेड बटर माने खाने पीने का इंतजाम भी हो गया, और वो रेग पिकिंग ऐसा काम करके भी अपना जीवन का गुजारा वो करते हैं. तो ये दूसरे एपिसोड के अंदर हमने इनकी जो दिल्ली के आसपास के सीमापुरी विस्तार है, रेग पिकर्स की जो लाइफ है, उनको थोड़ा सा जानने का प्रयास किया. इनको अब सुनते रहना, जो इंपॉर्टेंट बात लगे वो अपनी नोटबुक के अंदर लिखते रहना. और इन द थर्ड एपिसोड once again we will discuss the remaining part of the unit. So okay, Harish Rawal, Matru Mandir English Medium School, Rajkot. Have a nice academic year. Thank you very much.